એશિયાના સૌથી જૂના અખબાર મુંબઈ સમાચારમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. ગઈકાલના એક નિર્ણયને કારણે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓ ઉપર પાણી ફેરવાઈ ગયું છે. નીટ એક્ઝામ રદ થયાના સમાચાર મળતા જ વિદ્યાર્થીઓ નાસીપાસ થઈ ગયા છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો આક્રોશ સામે આવી રહ્યો છે. આમાં છે ને બે પરિબળો કામ કરી ગયા. સૌથી પહેલાં તો જે વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ સારી ગઈ છે તેઓને હવે એ ટેન્શન છે કે નેક્સ્ટ હવે જે પેપર આવશે એ કેવું આવશે, અને જેઓની એક્ઝામ થોડીક નબળી ગઈ હતી એના માટે આ એક આશીર્વાદ સમાન છે કે તેઓને એક બીજો ચાન્સ મળે છે પોતાની કાબિલિયત પુરવાર કરવાનો. ઘણા બાળકોએ તો પોતાના પુસ્તકો રદ્દીમાં વેચી દીધા હતા કે હવે તો એક્ઝામ પતી ગઈ છે અને હવે રિઝલ્ટ આવવાનું છે, અને એ લોકો ખુશી ખુશી રિઝલ્ટની રાહ જોતા હતા અને હવે એ જ ચોપડા પાછા ખરીદવાનો સમય આવ્યો છે. તો ચાલો આજે આપણે વિદ્યાર્થીઓને મળીએ અને જાણીએ કે એમની મનોસ્થિતિ શું છે અને એ લોકો કેટલા પ્રિપેર છે આ એક્ઝામ માટે. તો આવો આપણે મળીએ. So, in short, talking about the decision, I'll say that we are not that happy with the decision, even if we score less, even if we score more. It's never about the opportunity again. Like, it's वो हम खुद को समझाएंगे बस कि that's the thing. But then it's a huge. You are not happy, basically. We are not at all happy with the decision. Yeah. I'm Prachi, and according to me, the decision was a right decision, but my main problem was the things that happened before the decision was made. Like, what made you, like a big organization, think that a paper pen would not get leaked? Like, JEE is being conducted by the same organization, but you don't hear news about that. The profession itself is so hard and we have to put up with so much. Adding on to it, you're just making us more stressed and making our lives more miserable. I don't understand the perspectives of those people who had little empathy towards those who were like really working hard, and those students who desperately wanted to become doctors. If you desperately want to become a doctor, then study hard for it like the rest of us did. You don't have to cheat your way through it, and you should just think about the rest of us. It's not that easy for anyone. Hi, I'm Jia, and I think not all of us are very happy with the decision. We would not want ourselves to be in this kind of situation, because going through all of those stages again, the revision stage, the preparation stage, is going to be difficult. But then again, keeping in mind the scale of paper leaks and cheating, I think it is a fair decision at a national level. So now that the only way out of this loop is again appearing for the exams and just hoping for the best. So I think we as students, our role should be focusing on preparation and working even harder and hoping for the best. Riya, what do you think? Are you prepared to give exam again? मैंने 2 साल प्रिपेयर किया था. आई एम जिया फ्रॉम घाटकोपर ब्रांच, एंड मैंने 2 साल प्रिपेयर किया. आई यूज़ टू स्टडी, सॉल्व, गिव एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग. एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर द एग्ज़ाम कि हो जाएगा फाइनली. मैंने टाइमर रखा था अपने फ़ोन में. आई जस्ट वांटेड दिस टू गेट ओवर विथ. वंस माई एग्ज़ाम वाज डन, आई वाज रियली हैप्पी. और अब अचानक ये लोग डिक्लेयर करते हैं 10 दिन बाद कि हमारे रिज़ल्ट्स ही अब कैंसिल हो गए, हमारा अब वैल्यू ही नहीं रहा है. ऐसा थोड़ी होता है. अब वापस रीनीट के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो. आई जस्ट थिंक इट्स वेरी फेयर, एंड मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे वापस देना है या नहीं देना है. आई एम स्टिल इन अ डिलेमा. आई डोंट नो व्हाट आई एम सपोज टू डू. फुल कन्फ्यूजन है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं पचता है. सो आई डोंट नो क्या करना है, एंड इट्स वेरी रॉन्ग. मेरे पेरेंट्स अनश्योर है कि मुझे वापस देना चाहिए या नहीं. मुझे खुद को लगता है कि मुझ में अब स्टैमिना बाकी नहीं है. आई एम नॉट श्योर कि अब वापस पेपर लीक होगा या नहीं, बिकॉज 2024 में भी लीक हुआ था, 2025 में उन्होंने टफ़ पेपर किया था, वो भी लीक हुआ था, अभी वापस लीक हो गया. तो अब वापस देने का फ़ायदा होगा भी या नहीं, वो हम लोग श्योर ही नहीं है. नॉट मी, नॉट एनीवन. વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમના મેન્ટોર અને કાઉન્સેલર પણ આ નિર્ણયથી હતાશ છે, પરંતુ તેઓ અત્યારે એ જ વિચારે છે કે વિદ્યાર્થીઓને પાછી હિંમત કઈ રીતે આપવી અને કઈ રીતે એમનું મનોબળ વધારવું. તો ચાલો આપણે વાત કરીએ નીટ સ્ટુડન્ટ કાઉન્સેલર અને ફેકલ્ટી સાથે. मैम, वी वांट टू नो कि कल जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो किस हद तक सही है और आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, किस हद में सही है इससे ज़्यादा कि पहले ये हुआ क्यों, ये इम्पॉर्टेंट है.
सही तो डिसीजन अभी लिया है, लेकिन हर साल ये लेवल ऑफ चीटिंग होता है। हमने हर बार बताया ये पेपर लीक हो रहा है, बट एनटीए कभी मानने को तैयार नहीं थी। अब जब ये देश भर में फैल गया एंड सबको पता चला कि ये एक्चुअली लीक हुआ है, 2024 में भी ये लीक हुआ था, लेकिन एनटीए ने कोर्ट में भी स्टेटमेंट दिया कि ये सिर्फ 2 ही सेंटर में कुछ बच्चों के बीच में हुआ है, जबकि तभी भी हमने प्रूफ के साथ में बताया था कि सब काफ़ी जगह पर, इवन महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके केरला तक पहुंचा था पेपर, लेकिन अग्री नहीं किए। इस बार बेटर सेंस प्रिवेल्ड, सो इट्स गुड दैट समथिंग गुड दिस रीनीट हैज हैपेंड, बट इससे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा है ये एनटीए जानना चाहिए। एनटीए ने मैम, एक्चुअली द थिंग इज मिस्टेक किसी और की है, एंड द जेन्युइन किड्स हु हैव लिटरली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स एंड उनके पेपर्स अच्छे गए हैं, तो उनका क्या कसूर है इसमें? एग्जैक्टली बच्चों का यही इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि हम क्यों इसका सजा भुगते, जिसने चीटिंग किया उनको पकड़ो, उनको सस्पेंड करो और हमारे पेपर जो है हमारे मार्क्स हमको दे दो। ये फर्स्ट रिएक्शन है। लेकिन इतने मास स्केल पे हुआ है कि आप पेपर किसने निकाला, ये पहले लीक किसने किया, एनटीए के पास से पेपर किसने लीक किया, ये एनटीए ने पहले देखना चाहिए। आपका इनसाइडर ही कोई होगा। राइट। जब तक इनसाइडर का हाथ नहीं है, ये बाहर वाला कोई आसानी से पेपर लीक नहीं कर सकता। आप एसबीआई के वॉल्ट्स में रख रहे हो, उधर उधर से कोई कॉमन मैन नहीं निकाल सकता। भले एक बंदे ने अंदर से निकाला, फिर वो फैलते फैलते सारे कंट्री में गए। तो जिसने निकाला पहले उसको पकड़ो, क्योंकि फिर से नीट होगा। बच्चों का सवाल यही है कि फिर से नीट होगा तो ये वापस से नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? फिर ये पेपर लीक होगा एंड फिर हमको क्या गारंटी कि हमारी मेहनत का फल मिल रहा है? हमने तो 2-2, 3-3 साल, जो रिपीटर बच्चा है वो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है, उन बच्चों के लिए भी तो सोचो आप, क्योंकि बार बार नंबर बनाने के लिए बच्चे 3 साल 4 साल मेहनत कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है? तुम फिर से उनको बोल रहे हो पढ़ने को। वो लोग हॉलीडे मूड में चले गए हैं, थोड़े कोई बाहर गए हैं, उनके लिए फिर से यहाँ आना, बुक्स लेना। कई बच्चों ने तो बुक्स भी बेच दिए। राइट। कि भाई हमारे मार्क्स बन गए, जो मार्क्स आए उसमें हमको सीट मिलने वाला है, वो बुक्स बेच दिए। अब उनके लिए क्या करोगे आप? राइट। तो ये सबका ख्याल एनटीए ने करना चाहिए और ये सारा सिस्टम जिसने भी खराब किया ये सबको पनिश होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा इनसाइडर जॉब है, ये इनसाइड कौन कर रहा है ये एनटीए जानता भी होगा, तो उनको सामने लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ने इनको जूतों से मारनी चाहिए। मैम, दूसरे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, मगर ये नीट में ही ऐसा क्यों प्रॉब्लम आता है? नीट में इसलिए आता है क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर लीक करने से लोगों का पैसा बन रहा है, साथ में एग्ज़ाम के बाद में एडमिशन प्रोसेस में कॉलेजेस इन्वॉल्व होती है, इससे भी उनके पैसे बन रहे हैं। कॉलेजेस को चाहिए कि सारे उनके सीट्स भरे, उतने मार्क्स बच्चों को आए। तो ये सारा सिस्टम जो है ये एडमिशन का खेल है। मार्क्स लाएंगे, मार्क्स के लिए पैसे बनते हैं, उसके बाद में एडमिशन के पैसे बनते हैं। तो इस सिस्टम को आपको कुछ स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। आप एक मेडिकल डॉक्टर बना रहे हो जो लोगों के जान से खेलने वाला है, तो आपको किस क्वालिटी का डॉक्टर चाहिए? अपने देश ने अपने के बच्चों ने बताना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों मंत्री या नहीं जाते इधर इंडिया में के हॉस्पिटल्स में? क्यों उनको बाहर की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती? क्योंकि उनको पता है उन्होंने करप्ट सिस्टम से करप्ट डॉक्टर्स बनाए हुए हैं, तो उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं हो, बाहर जा रहे। आप हमारी इंडिया में क्या अपना अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं? आप अच्छे डॉक्टर्स बनाओगे, सारे लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, इवन जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में डॉक्टर है, टॉप डॉक्टर्स सारे इंडिया के डॉक्टर्स हैं। वो बाहर क्यों जा रहे? क्योंकि आपको यहाँ पर के सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। राइट। तो आपके हिसाब से ये सिस्टम चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? सिस्टम चेंज करने के लिए सारी लीडरशिप को आगे आनी चाहिए। राइट। लीडरशिप को होनी चाहिए कि हाँ भाई हमको सिस्टम में जो हमने बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो सिस्टम को आप मजबूत करो। आज कहीं पे भी जाओ, खाने दूंगा तो खाना ही पड़ता है। कॉमन मैन बोलता है कि मुझे नहीं करप्शन बनना है, लेकिन वो करप्ट होना पड़ता है उसको। कोई भी एक काम फाइल इधर से उधर निकालने के लिए भी उसको करप्ट होना पड़ता है। राइट। तो इस सिस्टम को कौन चेंज करेगा? ऊपर से नीचे जब सिस्टम है, तो ऊपर से जब बोलेंगे कि नहीं करप्शन नहीं होना चाहिए, तब नीचे वाले करप्शन नहीं करेंगे। राइट। जब एक चेन एंड सप्लाई है, वो चेन एंड सप्लाई को कहीं तोड़ना पड़ेगा आपको। મેમ, સૌથી પહેલાં તો આ નીટ એક્ઝામ એટલે 79 ચેપ્ટર્સ, 180 એમાંથી ખાલી 180 ક્વેશ્ચન્સ આવવાના છે. ખબર નથી કયા ચેપ્ટરમાંથી શું આવશે.
એની માટે તમે સ્ટુડન્ટ્સને આટલા 1 વર્ષથી તમે પ્રિપેર કરો છો. સ્ટુડન્ટ્સ સાથે સાથે પેરેન્ટ્સ પણ પ્રિપેર થાય છે આ એક્ઝામ માટે મેન્ટલી. પણ જ્યારે એક્ઝામ તો આપી દીધી, પણ જ્યારે આવું કોઈ રિઝલ્ટ અચાનક આવે કે યુ હેવ ટુ રીઅપિયર ફોર ધ એક્ઝામ, તો વોટ પ્રોબ્લેમ સ્ટુડન્ટ ફેસીસ મેન્ટલી એન્ડ વિથ ધેર પેરેન્ટ્સ? તમને સાચી વાત કહું, છોકરાઓ રડે છે. અચ્છા. બસ છોકરાઓ રડે છે, પાલકો રડે છે, બીજું કાંઈ સાંભળવા આવતું નથી. કાલથી અમે લોકો એ લોકોને ધીરજ આપીએ છીએ કે રાઈટ. ના થઈ ગયું છે, હવે આપણે શું કરવું છે, આપણે તૈયારી ફરી પાછી કરવી છે. You have to get ready to prepare again because children were all in vacation mood. Right. Many of them are already on vacation. उन लोग वैकेशन पे चले गए हैं, कई आउट ऑफ कंट्री भी चले गए हैं, રાઈટ. है ना. तो उनको वापस आना, वापस ये मोड में प्रिपेयर करना, और जो बच्चा स्कोर करके बैठा हुआ है ना अपने वही। मेरिट पे, जो बच्चा अपने मेरिट पे, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो 695 है, 700 है, 706 है, 680 है, 670 है. हमारा जो स्टूडेंट्स ग्रुप है ना, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर बच्चे हैं. वो बच्चों को संभालना मेरे लिए एक चैलेंज हो गया है. फिर भी कल रात को हमने मीटिंग ली, पेरेंट्स से भी मीटिंग ली. पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन था, मैम मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की, अब वापस से मेरा बच्चा प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वापस पेपर लीक नहीं होएगा. तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वापस पेपर लीक नहीं हो और सिस्टमेटिकली ये पेपर हो जाए और एडमिशन प्रोसेस जो है वो टाइम पे आ जाए, हो जाए. क्योंकि पेरेंट्स को ये भी एक चिंता थी कि एडमिशन, अभी पेपर लेट होगा तो एडमिशन लेट होगी, Right. एडमिशन लेट होगी तो जो एकेडमिक ईयर है वो लेट वो लेट स्टार्ट होगा. तो ये पूरा इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो बच्चों के माइंड पे बहुत दूर तक जाएगा. और ये इस साल की बात नहीं, अगले साल के बच्चे भी डर गए हैं राइट. ऑलरेडी. उनको डर आ गया, मैडम हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, नीट छोड़ दे क्या. मगर मैम पहले ऐसे 1 ईयर गैप में देखें तो एवरी मई के जो फर्स्ट संडे को एग्ज़ाम्स रहती है, मगर अभी कितना टाइम देंगे बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए? देखिए, लॉजिस्टिक्स अरेंज करने के लिए, पेपर प्रिंट करने के लिए, वापस इन्विजिलेटर्स को ट्रेन करने के लिए उनको कम से कम 1 से 1.5 महीना, सवा महीना चाहिए. 30 to 45 डेज मिनिमम एनटीए को लगेगा ये सब स्ट्रीमलाइन करने को. Right. क्योंकि उसके बगैर तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा. और ऑलरेडी CUET एग्ज़ाम इन लाइन है और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लाइन में है. तो वो सेंटर्स जो हैं वो ये एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी हैं और एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं. तो वो एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं कर सकते. इसके लिए नीट को वापस कंडक्ट करने के लिए मिनिमम 30 to 40 डेज तो लगेगा ही लगेगा. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो बच्चे को 1 साल सब प्रिपरेशन करने में लगा है, विल दे बी आई मीन प्रिपेयर थिंग्स इन 1 मंथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को भी बोलती हूँ. आप लोगों ने ना बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपने 2 साल बहुत मेहनत की है. एग्ज़ाम अभी 10 दिन पहले ही हुआ था. सुधा मैडम ने कल हमारे ग्रुप पे भी डाला था कि खाली 9 डेज़ हुआ है. मेमोरीज फ्रेश. मुझे पता है कि बोलना आसान है, करना Right, नहीं. right. लेकिन कैसा होता है ना, हम इंडियंस हैं, हम अपने जो हमारा सोच लिया ना निर्णय के पक्के होते हैं. एंड आप लोग डॉक्टर्स बन रहे हो, बिंदास ले लो, बी अ वॉरियर और गो अहेड. ये जो 9 दिन का गैप आया है ना, उसको आप, ये बच्चे 2-3 दिन के प्रेपरेशन में वापस रिदम में आ जाएंगे. और 1 महीने में आप देखना, मैं आपको बोल रही हूँ, बच्चे ना जो आज स्कोर है ना उससे भी अच्छा perform करेंगे, उससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. और ये हम तो रेडी हैं. टीम साइकॉन इज़ ऑलवेज रेडी विद द स्टूडेंट्स. मुझे पता है कि मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो भी रेडी हैं और कुछ Right. ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बच्चों को बोल दिया है कि आप लोग क्लास आ जाओ, हम आपका रिविजन कराते हैं. तो हम इंडियंस तो वैसे भी हार्ड वर्किंग होते हैं, हम कर Yes. लेंगे. हम सिचुएशन से डरते नहीं है. खाली क्या है कि ये हमारे 16-17 साल के बच्चे जो हैं थोड़े से इमोशनली हो Right. जाते हैं और 2 साल से इन्होंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया है. Right. इतना सेक्रीफाइस किया है. आप बोले कि घर में रिश्तेदार की शादी है, घर के अंदर भी फंक्शन है, तो बच्चों ने वो नहीं किया है. तभी बच्चों को थोड़ा ऐसा लगा कि हम लोग अभी तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं रिजल्ट आने तक. और कितने ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे गांव से सिटीज़ में आते हैं, शहरों में आते हैं, तो उन्होंने यहाँ के हॉस्टल बुक किया होता है, किराए से रूम लिया होता है, उन लोग ने वो सब छोड़ दिया ना. Right. तो वापस से पेरेंट्स को अपना सब काम धंधा छोड़ के वापस वापस आके उनके आना लिए ये पड़ेगा. सब बसाना पड़ेगा. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है. देखिए, मतलब ऐसा होता है, अर्थक्वेक आता है, ये आता है, तो वो वापस से दुनिया सिमट जाती है, सब चालू हो जाता है. लेकिन टाइम फ्रेम बहुत कम है ना. कम है. पेरेंट्स लोगों के लिए जो बाहर चले गए हैं वो बच्चों को वापस बुलाना, उनको मेंटली स्टेबल करना कि वापस से वही पढ़ाई करो जो आप अभी तक कर रहे हैं. तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. आई थिंक एनटीए को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिपीट नहीं हो, क्योंकि ये पिछले 3 साल में 2 बार रिपीट हो गया है और मास स्केल पे रिपीट हो गया है. तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके साथ में ये अत्याचार है.
આ જે ગઈકાલે જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે નીટની એક્ઝામ પાછી થશે, એમાં બે સિચ્યુએશન ખાસ સામે આવે છે. સૌથી પહેલાં તો વિદ્યાર્થીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે જોઈએ, સ્ટુડન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તો જેમનું પેપર સારું ગયું છે તેઓને ચિંતા છે કે હવે નેક્સ્ટ પેપર કેવું આવશે, અને જેમનું પેપર ઓકે ગયું છે, જેમાં એ લોકોને એમ લાગતું હતું કે અમે આમાં વધારે માર્ક્સ સ્કોર નહીં કરી શકીએ, સો ફોર ધેમ ઇટ્સ અ બ્લેસિંગ. તો આ બંને પરિબળો આમાં કામ કરે છે. પણ આપણે મેમને પૂછીએ કે એમનું શું કહેવું છે, અને સ્ટુડન્ટ્સના રિપ્લાય અને ફોન કોલ્સ આ ક્વેશ્ચન્सને કેટલું માન્ય આપે છે. सी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया था ना बेटा, यू डोंट हैव टू वरी, पेपर विल बी सेम टाइप. इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेपर आ नहीं सकता है. पेपर इजी क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चंस मार्केट में आ गए थे. तो आपने जो पढ़ाई की आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा. यू विल बी एबल टू आंसर द पेपर वेल. मैं तो बोलती हूँ जो 690 वाला बच्चा है ना, मार्क माई वर्ड, आप 700 ले आओगे. और जो बच्चों को कम मार्क्स आए थे, आपके पास एक और चांस आया है. रादर देन रिपीटिंग वन मोर ईयर, आपको खाली 40 डेज़ का या 30 डेज़ का रिपीट है. आप ये 30 डेज़ में अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करो, रिविजन पे काम करो, आपका पेपर अच्छा जाएगा. वी आर विद अंजू मैम who is a parent counselor. So मैम, वी वांट टू नो कि बच्चे तो परेशान हुए ही हैं, तो साथ में पेरेंट्स को हैंडल करना हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. पहली बात तो जो एग्ज़ाम इस बार हुआ था, तो पेरेंट्स को तो सबसे ज़्यादा डर था कि रैंकिंग कैसी होगी. राइट. क्योंकि जो टॉप स्कोरर्स हैं उनको भी टेंशन था कि रैंक कैसी आएगी, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन 2024 में हुआ था. जो टॉप स्कोरर्स थे उनको जो मोस्ट पॉसिबल सीट मिलने की चांस थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि रैंक्स हाई हो गए थे. उसके ऊपर अभी जो बच्चे 650 के ऊपर 640 के ऊपर जो स्कोर्स लेके आए, उनके पेरेंट्स ये सोच के तो रिलैक्स थे कि चलो हमको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, Right. भले टॉप नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी. सो दे और ऑलरेडी दे हैड मेड प्लान्स कि हम अभी वेकेशन पे जाते. 2 साल उन्होंने छुट्टी नहीं लिया था. दूसरी बात ये भी है कि अभी जो टॉप स्कोरर्स हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल मेंटली प्रिपरेशन नहीं होगा कि वापस एग्ज़ाम दें. Right. तो वो तो यही बोलेंगे कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, हमने मेहनत करके मेरिट पे मार्क्स लाया है. तो 100% जैसे पास्ट 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, नीट जब से आया है कोई ना कोई कोर्ट जाने ही वाला है, और जा भी रहे हैं पेरेंट्स. तो जब ये कोर्ट केसेस का सिलसिला चालू होगा तो मैनी केसेस विल गो फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट. Right. जो टॉप स्कोरर्स हैं उनको रीनीट नहीं चाहिए, जो मीडियम स्कोरर्स हैं जो उनको रिपीट करना था वो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई कि वापस एग्ज़ाम दो, हमारे स्कोर्स को हम बेटर कर सकेंगे. Right. तो अभी ये तो इन लोग ने डिवीज़न क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये डिवीज़न में री नीट वर्सेस नीट वापस होने वाला है. अब इसके चक्कर में गारंटी है कि क्यों हमने देखा है कि जुडिशियल सिस्टम जिस तरह से ये हमारे एजुकेशन केसेस को हैंडल करता है, कभी भी टाइम पे जजमेंट मिलता नहीं है, केसेस ड्रैग होते रहते हैं. और एनटीए इज़ यूज्ड टू हैंडलिंग कोर्ट केसेस. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. 2 साल से लीकेजेस हो रही है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इस टाइम रीनीट करने की उनकी नौबत आ गई. तो दैट इज़ अ प्रूफ कि दे हैव नॉट टेकन Any action before. एनीथिंग. एंड पॉसिबली द जो जिन्होंने पिछली बार लीक किया था उन्होंने वापस हिम्मत करके वापस स्कैम कर दिया है. तो जो पेरेंट्स कोर्ट जाएंगे तो ये भी सोच के रखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी है जो रीनीट की डेट्स आएंगे वो सही में फॉलो होगा कि पोस्टपोन होगा. क्योंकि हम देख रहे हैं एज काउंसलर्स इतने सालों से देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ टाइम पे इनका ख़त्म होता नहीं है. या तो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं कंडक्ट होता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो एडमिशन्स टाइम पे नहीं कंडक्ट होता है. तो पॉसिबली जो बच्चे अक्टूबर में उनको कॉलेजेस ज्वाइन करना चाहिए आफ्टर फ्यू राउंड्स ऑफ एडमिशन, अब वो ये सोच के बैठेंगे ये साल हमारा होगा कि नहीं एजुकेशन चालू. Right. 11th और 12th ख़त्म किए हुए जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप ऑफ करियर स्टार्ट हो. राइट. अगर जो बच्चा MBBS कर लेता है, वो PG करना चाहता है, तो चलो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट है. यहाँ पे तो ग्रेजुएशन करने के लिए उनको एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस दिया है उसी का ठिकाना नहीं है. तो अब वो ग्रेजुएशन करने के लिए भी उनका कब स्टार्ट होगा कोर्स? राइट. क्या NTA वो भी गाइडलाइंस चेंज करेगा कि ये कोर्स का एजुकेशन सिस्टम ये साल का बैच का कब स्टार्ट होने वाला है? वी डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर. पॉइंट इज दैट पेरेंट्स का भरोसा उठ गया है, स्टूडेंट्स का तो भरोसा उठ ही गया है, क्योंकि उनके मेहनत पे तो उन्होंने पानी फेर दिया है. मेरिटोरियस दे हैव किल्ड मेरिट. NTA पे भरोसा नहीं. अब पेरेंट्स ये सोच NTA को स्क्रैप करके भी कोई मतलब है, क्योंकि पहले CBSE कंडक्ट करती थी तभी फेयर सिस्टम होता था. जब से NTA ने टेक ओवर कर लिया है, दे आर नॉट मैनेजिंग. JEE कैसे मैनेज करते हैं? JEE तो काफ़ी फेयर एग्जाम्स होते हैं, लेकिन नीट क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? सो दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट
एंड दे नीड टू सी व्हाट इज़ द फ्लॉ इन देयर सिस्टम कि बार बार हर साल ये स्टूडेंट्स को थ्रू टॉर्चर डालते हैं इन लोग, हर साल कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं, एक भी साल स्मूथली होता ही नहीं है कोई भी प्रोसेस. बेसिकली एज आई सेड दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेक द चेंजेस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आगे जाके जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इसी तरह कोई भी पीसफुली हैंडल नहीं करने वाला है. कोर्ट केसेस इज नॉट अ सोल्यूशन इन एजुकेशन सिस्टम. If that is the way the system is going to continue, India needs to really change the way the education system is. ગઈકાલે જે ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું છે તો એમાં સરનું શું કહેવું છે અને વોટ સ્ટુડન્ટ્સ આર ફેસિંગ. સો લેટ્સ મીટ હર્ષદ સર. હેલો સર, વી વેલકમ યુ. હેલો મેમ. સો શું રિએક્શન છે સ્ટુડન્ટ્સના, પેરેન્ટ્સના, તમારું પર્સનલી શું કહેવું છે આ માટે? See, actually, if you go to see, કે we have to look at the mental aspect of this entire thing. So from yesterday when we are talking to students, there is a mix of emotions. There are some students who are very tensed because you have to go through the entire grind of studying again. Some students are finding that it's a correct move because if someone has copied, if someone has cheated, so it is unfair for that student to get medical admission also, as opposed to other students who have actually worked hard. So from yesterday when we are speaking to students, we are getting a mix of emotions of, a doubt. Some are happy, some are actually sad about this also. The ones who have got the relief, ke, the exam is over, ke have mane nathi bhanvu, maru pati gyu. They have to now again start opening the books. It's a very, very difficult thing to do, when an exam gets over. It is a relief which the child gets. It's a mental de-stress which the child actually experiences. હવે ફરીથી પાછું સ્ટ્રેસ આવવાનું is something which we have to actually look into, which is an aspect which we as the teaching faculty or teaching fraternity have to think about and support the kids that way. દર્શક મિત્રો, ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ અને સિસ્ટમની મિલીભગત કેટલા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરશે? શું આ દેશમાં મેરિટ પર આવનારા વિદ્યાર્થીની કોઈ કિંમત નથી? મુંબઈ સમાચારના આ ખાસ રિપોર્ટમાં આપણા અભિપ્રાય જણાવશો. હું છું ખુશ્બુ, કેમેરામેન રમેશ કોડરેકર. મારું, તમારું અને સતત ધબકતું મુંબઈ સમાચારની સાથે આવી જ બધી સ્ટોરી માટે અમારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.